Acha, in last class we were discussing about the position of electron or where electrons are actually present around the nucleus of an atom. We discussed that in order to locate any electrons they do not just stay in the orbits but they occupy a particular region, and that particular region was called as orbitals. So orbitals are those regions around the nucleus of an atom where chances of finding the electrons are maximum, right? Alvin, you have to just leave a message on my WhatsApp. I will guide you how can you access the recorded lectures and the class notes and the topical past papers. Okay? Just leave me a message on the WhatsApp after the class. I will guide you through the procedure. Now, in order to locate any electron, we know that electrons, they are present around the nucleus in the orbitals. But orbitals से पहले we used to study in O level that we have shells, जिनको अब हमने क्या नाम दे दिया? We call them principal quantum shells. ठीक है? Last time we talked about this, that every shell now would be called as principal quantum shell. इसका पूरा नाम पढ़ेंगे, चीज वही है. We have principal quantum shells. In every principal quantum shell, we have some subshells, and within those subshells, we have different orbitals. So the final area or the final position of the electron are the orbitals, but remember that orbitals are not a pinpoint position. These are the regions where you can find the electron or where the probability of finding the electrons are maximum. उसमें भी हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, बट वी कैन नॉट सर्टेनली से कि an electron is present at one point because electron they keep revolving around the nucleus. ठीक है, वो एक जगह पे रुकते नहीं है ना. So that's why we have to think about the complete area where we can find the electron. सही. And then we discussed, after definition of orbital, we discussed that each orbital can hold up to maximum of 2 electrons only. Each orbital can hold up to maximum of 2 electrons only, right? And how many subshells do we have? We have 4 types of subshell: S subshell, P subshell, D subshell, and F subshell. If we talk about S subshell has only one orbital. You guys have to remember all this. S subshell has only one orbital. And if it has only one orbital, how many total number of electrons it can hold? It can hold only 2 electrons. The maximum number of electron S subshell can hold is 2 electrons because it has only one orbital. And each orbital can hold maximum of 2 electrons. But a P subshell has 3 orbitals. So if it has 3 orbitals and each orbital can hold 2 electrons, so a P subshell can hold total of 6 electrons, right? I am writing the maximum amount of electron that it can hold. अब 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, but 6 से कम तो हो सकते हैं ना. It can be 5, it can be 4, it can be 3, right? But it cannot be more than 6. Similarly, we have D subshell, and D subshell has how many orbitals? A D subshell has 5 orbitals. So it means a D subshell can hold up to maximum of 10 electrons. What I am doing is I am just multiplying the number of subshells by 2 because each orbital can hold 2 electrons. If I multiply 5 into 2, I get 10 electrons. P subshell के लिए भी तो यही किया था, 3 into 2 किया था, 6 electrons. Similarly, we have one more type of subshell, that is F subshell, and F subshell has total of 7 orbitals. So how many maximum number of electron a F subshell can hold? 7 into 2, that would be equals to 14 electrons, right? अब प्रिंसिपल क्वांटम शेल बेसिकली जो शेल्स आपने पढ़े थे ना, जो ऑर्बिट्स पढ़े थे, उनको कहते हैं. अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल of any atom has only S subshell,
मतलब किसी भी एटम का जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल होगा ना, उसके पास सिर्फ एक ही सब शेल होता है, दैट इज एस सब शेल. I'm writing a heading, principal quantum shell, then subshells, and then I'm writing maximum electron that every principal quantum shell can hold. First principal quantum shell has only S subshell, and S subshell can hold up to maximum of 2 electrons only because it has only one orbital. So हम ना इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, we will write 2 over S. जो पावर में जैसे नंबर लिखते हैं ना, वैसे हम 2 लिखेंगे. It means this S subshell has a capacity of 2 electrons. So first principal quantum shell, as it has only one S or subshell, it can hold maximum of 2 electrons. Similarly, second principal quantum shell has S subshell as well as P subshell. Its S subshell can hold maximum of 2 electrons and its P subshell can hold maximum of 6 electrons. So a second principal quantum shell can hold maximum of 8 electrons. यही आपने O level में भी पढ़ा था या IGCSE में भी पढ़ा था grade 11 में. But a third principal quantum shell has S subshell, P subshell and D subshell. S subshell can hold maximum of 2 electrons. P subshell can hold maximum of 6 electrons. And a D subshell can hold maximum of 10 electrons. It means if you talk about third principal quantum shell, the maximum number of electrons a third principal quantum shell can hold is 2 plus 6 plus 10. That would be 18 electrons. अब यहां से चीजें डिफरेंट हो जाएंगी जो आपने पहले पढ़ी. अब ऐसा नहीं है कि पहले हमने थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल की जो एटम्स में बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू हैव लेट्स से कैल्शियम. अ कैल्शियम एटम हैज 20 electrons, right? Its first shell has 2 electrons, second shell has 8 electrons, third shell has 8 electrons and the last shell has 2 electrons. अब आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड शेल में तो मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, तो व्हाई वी डिडंट मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम लाइक दिस कि हमने 2,8,10 लिखते हैं. अभी भी वो 2,8,10 नहीं होगा, 2,8,8,2 ही होगा. अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा क्यों. ठीक है, अभी समझ आ जाएगा. गलत कुछ नहीं बनाया था हमने उस वक्त भी, बस कुछ इंफॉर्मेशन हाइड की थी आपसे. अभी वो इंफॉर्मेशन रिवील करने वाले हैं. फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैज अ S subshell, a P subshell, a D subshell and a F subshell. S subshell can hold up to maximum of 2 electrons only. P subshell can hold maximum of 6 electrons. D subshell can hold maximum of 10 electrons, whereas F subshell can hold maximum of 14 electrons. If you add up all these numbers, you will get कितना आएगा? Maximum of 32 electrons. मतलब fourth principal quantum shell can hold maximum of 32 electrons. Similarly, fifth principal quantum shell also have these 4 types of subshell: S subshell, P subshell, D subshell and F subshell. So fifth principal quantum shell can also hold up to maximum of 32 electrons. If you see the sixth principal quantum shell, जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी A level में, but still I am telling you that a sixth principal quantum shell has S subshell, P subshell and D subshell. It does not have a F subshell. So it can hold maximum up to 18 electrons, right? तो यहां तक तो आप याद रखो. बट हमने 7th और 8th की भी बात की थी, बट दैट वोंट बी रिक्वायर्ड इन योर A level. बट अगर हम 7th प्रिंसिपल क्वांटम शेल की बात करें तो इट जस्ट हैव 2 subshell, S subshell and P subshell, and the 8th principal quantum shell has only S subshell. So a 8th principal quantum shell can hold up to maximum of 8 electrons and the 8th principal quantum shell can hold up to maximum of 2 electrons. 7 के पास maximum 8 आ सकते हैं, 8 के पास 2 आ सकते हैं. But as far as your A level is concerned, you are supposed to remember up till 5th principal quantum shell. यहाँ तक तो आपको याद रखना है. ठीक है, आगे थोड़ा सा याद कर लोगे तो कोई ऐसी गड़बड़ की बात नहीं, अच्छा ही हो जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन. अब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिवाइटलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, बट बिफोर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था ग्रेड 11 में, उसमें आप क्या करते थे? यू हैव टू डिसाइड विच शेल हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे इफ यू रिकॉल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम,
you decided that first principal quantum shell of sodium has 2 electrons, second principal quantum shell has 8 electrons, and the last principal quantum shell has 1 electron. How did you decide that? Because we studied that every atom first shell can hold up to maximum of 2 electrons, but second shell onwards no shell can hold up to more than 8 electrons. But now we have just making some amends. हम उसमें थोड़ा सा रूल को अपना पूरा कंप्लीट रूल पढ़ रहे हैं कि भाई थर्ड शेल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स नाउ एंड द फोर्थ शेल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे. बट whenever we have to make the electronic configuration, we have few rules that we need to study. तो पहले तो हम rules for making electronic configuration discuss करते हैं. Rules for making electronic configuration. अच्छा जी, फर्स्ट रूल इज नोन एज ऑफ बॉस रूल. अब ये जो रूल्स के नेमिंग है ना, इसको देख के जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरह के नाम है. ये आपको याद भी नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट दीज रूल्स. इनके रूल्स, इनके नेम आपको याद नहीं करने हैं. बट फर्स्ट रूल को हम कहते हैं ऑफ बॉस रूल. Of-Boss rule states that lower energy orbitals are filled first. अब इसका क्या मतलब है? देखो, हमारी अभी तक जो बात हुई है वो ये हुई है कि किसी भी एटम का जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल होता है उसके पास सिर्फ s सब शेल होता है. तो हाउ डू वी राइट के फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल का जो s सब शेल है उसको वी राइट इट लाइक दिस 1s. This 1s tells you that it is the s subshell of the first principal quantum shell. But if we talk about second principal quantum shell has one s subshell and it has one p subshell. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2s and 2p. इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2s का मतलब ये नहीं है कि we have two types of s subshell. It means 2 का s subshell. You got my point? It means s subshell of second principal quantum shell. This means p subshell of second principal quantum shell. अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं 2p लिखा है, it means we have 2 p subshells. No, ये 2 का p subshell. Got it? Similarly, if you see the third principal quantum shell of any atom, it has 3s subshell, means 3 ka s subshell, s subshell of third principal quantum shell, p subshell of third principal quantum shell and d subshell of third principal quantum shell. 3 का s, 3 का p, 3 का d. इसका मतलब ये 3s नहीं है, ये 3 का s है. ये एक होती है कॉमन मिस्टेक, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं. Now for fourth principal quantum shell, it has 4 s subshell, 4 p subshell, 4 का d subshell and 4 का f subshell. Similarly, fifth principal quantum shell has its own s subshell, it has its p subshell, it has its d subshell, it has its f subshell. If we keep moving on, sixth principal quantum shell has its s subshell, its p subshell and its d subshell. और आगे बढ़े तो सेवन प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैव इट्स s सबशेल, इट्स p सबशेल एंड एट प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैज ओनली इट्स s सबशेल. दैट्स इट. नाउ एनर्जी देखो, the electrons which are more closest to the nucleus are at the lowest energy. The electrons that are away from the nucleus are at the highest energy. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, it means they are at the lower energy. If you keep moving away from the nucleus, the electrons in the orbitals or orbits away from the nucleus are at high energy level. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब है वो लो एनर्जी लेवल पे, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर है वो हायर एनर्जी लेवल पे. तो एज पर दिस रूल, जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे मस्ट बी एट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल
the electrons of the second principal quantum shell should be at the high energy level as compared to the electrons of the first principal quantum shell, and the electrons of the third principal quantum shell should be far away from the nucleus and should be at the higher energy level than the electrons of the first principal quantum shell and the second principal quantum shell. ये लाइन से ऐसे ही चलना चाहिए ना, लॉजिकली तो यही कहते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या होता है? इफ आई ड्रॉ द एनर्जी लेवल ऑफ दीस ऑर्बिटल्स, लेट्स से जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, if on y axis if we take the energy level, so what do we expect? We expect that the lowest energy orbital should be your 1s, then the high energy orbital above 1s should be 2s, which should be more away from the nucleus. Matlab all the electrons that are residing in the s subshell of the second principal quantum shell, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो 2s में होंगे वो 1s से ज्यादा दूर होंगे और ज्यादा एनर्जी लेवल पे होंगे। then electrons in the 3s, फिर 2s के बाद क्या आएगा? 2p. second principal quantum shell has two subshell, a s subshell and a p subshell. similarly s और p में भी there is an energy difference. 2 का जो p subshell होगा it should be slightly at a higher energy level than s subshell, मतलब 2p और 2s में भी difference होगा। second principal quantum shell का s subshell ये है तो p subshell उससे ऊपर हो। similarly if you see the third principal quantum shell, उसका जो s subshell है वो 2p से तो ऊपर होगा एनर्जी लेवल में, उसका 3p 3s से ऊपर होगा और 3d जो है वो 3p से ऊपर होना चाहिए। राइट, मेक सेंस? लाइन से चल रहा है सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में। What about fourth principal quantum shell? Fourth principal quantum shell should be at a high energy level than the third principal quantum shell. This would make sense, right? So what about 4s? 4s should be at a high energy level than 3d. राइट, ऐसा होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल इज बेसिकली स्लाइटली एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन 3d। वो 3d से लोअर एनर्जी लेवल पे होता है एंड 4p इज अगेन एट अ हाई एनर्जी लेवल देन 3d। फिर आ जाता है आपका 4d। जी भाई, कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ पे किसी का? भाई कुछ पूछना नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया? सारे ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? अरीश, अनस, जारा, जुनैरा। आवाज आ रही है आप लोगों को या चैट में लिख रहे हो कुछ भी? नो क्वेश्चन, मतलब यू आर नॉट क्यूरियस कि हाउ कम a 4s subshell is lower energy level than 3d, it should be at a high energy level than 3d। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि बनना चाहिए ना। देखो, इसका रीजन, पहली बात, इसका रीजन आपके 11 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो नहीं पूछेगा। You just have to remember that 4s is at a lower energy level than 3d, but obviously एक अजीब सी अनयूजुअल सी बात है, हमें डिस्कस करना पड़ेगा वरना हमें याद कैसे हो कि एक चीज सारी असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी, 3d के बाद 4s आता। ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, फिर केमिस्ट्री में लॉजिक से चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन यहाँ तो अब शैटर हो गई ये चीजें। देखो बेटा, अब एक चीज आपको ये रियलाइज करनी है कि हमारे पास लेट वेट, देखो हमारे पास जैसे ये किसी भी एटम का अगर न्यूक्लियस है ना, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बेसिकली इसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल रीजन को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से समझते हैं कि 1s सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने क्या करा, उनको पकड़ा और उनको एक बैकपैक पहना दिया, और बैकपैक के पीछे मैंने ना एक पेंट लगा दिया, लेट्स से रेड कलर का, कि ये इलेक्ट्रॉन अब जहां जहां भी जाएगा ना, वहां पे एक रेड कलर का रीजन पेंट हो जाएगा।
ठीक है। जो सेंटर में मैं बना रहा हूं ना, ये एटम का न्यूक्लियस है, राइट, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। अब हमारे पास जो 1s सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको हमने क्या करा कि एक रेड कलर का पेंट बांध दिया पीछे। अब जहां जहां वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस में, वहां का रीजन जो है ना वो पेंट हो जाएगा रेड कलर का। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद हमने इस इलेक्ट्रॉन को जब देखा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के करीब भी हो जाता है, कभी आगे भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा ना, तो हमारे पास इस तरह का कलर दिखना शुरू हो गया। मैं अब इसको 3D में विजुलाइज करना, लाइक दिस। तो ऑल द रीजन हेयर वाज ऑफ रेड कलर। इसका क्या मतलब है कि जो 1s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर बेसिकली ऑक्यूपाइंग अ स्फेरिकल रीजन। अगर मैं एस सब शेल की शेप की बात करूं ना, साथ साथ जो है ना हम इसका शेप भी डिस्कस करते जाते हैं। शेप ऑफ एस सब शेल। अब इसका शेप का क्या मतलब है कि भाई एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्फेरिकल रीजन। मतलब एक बॉल की तरह वो पेंट कर देंगे। मतलब एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक छोटी बॉल है, जस्ट इमेजिन कि एक स्मॉल बॉल है, उसके सराउंडिंग में एक बड़ी बॉल रखी हुई है, और ये जो न्यूक्लियस है वो बड़ी बॉल के सेंटर में। अच्छा, सही है। फिर 1s के बाद हम किस चीज का इलेक्ट्रॉन देखेंगे? 2s का। जब हमने 2s का इलेक्ट्रॉन देखा ना, तो हम वी आर सेइंग दैट 2s इलेक्ट्रॉन्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन 1s इलेक्ट्रॉन। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स है ना, they are basically revolving around the nucleus in a spherical region, but they are moving at a greater distance from the nucleus, मतलब as compared to 1s इलेक्ट्रॉन। तो हमने थोड़ी देर बाद, अब लेट्स से 2s के इलेक्ट्रॉन्स को हमने जो पेंट दिया ना, वो ब्लू कलर का पेंट दिया। अब वो जब जिस हमने थोड़ी देर बाद देखा, तो वो कुछ इस तरह का रीजन ऑक्यूपाई कर रहे थे, लाइक दिस। These 2s electrons can enter the region of 1s electrons, but they cannot leave their outer boundary। मतलब जहां तक उसकी आउटर बाउंड्री है 2s की, वो वहीं तक रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो रेड वाला है ये 1s के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 2s के बाद वी हैव 2p इलेक्ट्रॉन्स। अब 2p को भी देख लेते हैं। अभी जो 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हमने पकड़ा, और इनको हमने जो है वो एक ग्रीन कलर का पेंट पहना दिया बैकपैक के साथ, और इनको वी लेट देम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स थे ना, दे वर नॉट रिवॉल्विंग लाइक दिस, दे वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस। मतलब वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के, जरा ध्यान से देखना, वो न्यूक्लियस से टकराएंगे नहीं, न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे, यूं भी जा रहे हैं और फिर यूं भी आ रहे हैं, लाइक स्पाइरल, यूं करके, यूं 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 यूं। तो जब हमने थोड़ी देर बाद रियलाइज किया, तो पता है किस तरह का रीजन पेंट हो रहा था? इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो हमने पी सब शेल के, जब देखो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल रीजन थे, 1s का छोटा था, 2s का बड़ा है। लेकिन जब हमने पी का देखा, तो पी सब शेल का जो रीजन था, उसका शेप ही डिफरेंट था। अगर मैं एस सब शेल की शेप की बात करूंगा, तो दैट वाज सिंपली जस्ट दी स्फेरिकल शेप, लाइक दिस। बट पी सब शेल हैज अ डम्बेल शेप। डम्बेल समझते हो ना? वो जो जिम में डंबल नहीं होता, उसमें एक इधर एंड होता है, एक इधर एंड होता है। इट वॉज लाइक दिस। ठीक है। अब डी सब शेल का जो शेप होता है, वो हमें एएस में नहीं पढ़ना है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। एफ सब शेल का शेप भी हमें नहीं पढ़ना है। Up till AS we just have to stick to S sub shell and P sub shell shape, that's it।
अब देखो होता पता है क्या है, अब सपोजिटली these 2s इलेक्ट्रॉन, ये जो 1s के इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे शुड स्टे इन देयर रीजन दैट इज 1s। वो 1s में कहीं भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन अपने इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। सिमिलरली जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस रीजन में कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन 2s से बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रीजन में यू कैन फाइंड देम एनीवेयर इन दिस रीजन, बट दे आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दिस रीजन, जो 2p का रीजन है। इसी तरह अगर मैं 3s की बात करूंगा ना, तो 3s का जो रीजन होगा वो ये आ जाएगा, जो 2p से भी आगे होगा, मतलब ऑल 3s इलेक्ट्रॉन्स कैन गो into the regions beyond 2p, but they cannot cross their own bond, 3s की बॉन्डी से बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर मैं 4s की बात करूंगा तो वो और बड़ा रीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, they are not supposed to go beyond 4s, क्योंकि 4s should be at a high energy level। लेकिन जो 3d के इलेक्ट्रॉन जिस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, व्हाट हैपेंस कि डी सबशेल का शेप हमें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रॉन जब अपना चक्कर काटते हैं ना, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दे मूव बियॉन्ड इनटू द रीजन ऑफ 4s, और 4s से वो चक्कर करके वापस आ जाते हैं, लेकिन दे मूव अवे into the region of 4s, 4s के रीजन में एंटर होके फिर अपने रीजन में वापस आ जाता है। That's why we consider the 3d subshell electrons can go beyond 4s energy subshell, इसलिए हम उसको 4s से ऊपर कंसीडर करते हैं। मरियम, they do not cross their own boundary, this except for 3d subshell electrons, they cross their own boundary, और जब वो क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि भाई they must be at a high energy level than 4s, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक रीजन है ना इसका, जो बिल्कुल एक्यूरेट रीजन है, वो एक्चुअली हमें पढ़ना नहीं है, और दूसरी बार नाम से वो पूछेगा, नाम है इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। हमें बस ये चीज याद रखनी है कि जो 4s है इट इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन 3d, और उसको याद करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस किया है। लेकिन शेप तो आपको याद रखने हैं, लेकिन आपको ये वाला रीजन याद नहीं रखना कि वाई 4s इलेक्ट्रॉन्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन 3d, ये याद नहीं रखना। बस ये याद रखना है कि ये होते हैं लोअर एनर्जी लेवल पे, वाई नहीं याद कर। अच्छा, अब ये सारी बातें ना हमें ऑब्बॉ ने बताएंगी, दैट्स व्हाई दिस रूल इज नोन एज ऑब्बॉस रूल। अब ऑब्बॉस ने क्या बोला कि भाई ये याद करना तो मुश्किल है, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे 1s है, देन वी हैव 2s, देन वी हैव 2p, देन वी हैव 3p, देन वी हैव 3s, देन वी हैव 3p, 3d, then we should have 4s, right? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d 4s, अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में चलता, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में चल ही नहीं रहा, तो इट मींस कि 3d से पहले हमारे पास 4s आएगा एंड देन वी विल हैव 3d, और 3d के बाद भी क्या क्या आएगा वो भी ऑब्बो ने बोला कि इसको मैं एक शॉर्टकट बना दे। वो शॉर्टकट उसने क्या बनाया, इसने कहा कि यू जस्ट राइट दी सबशेल्स लाइक दिस, 1s, एक लाइन छोड़ के लिखोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा, 1s 2s 2p, 3 के बाद 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल के बाद 4s 4p 4d 4f होता है, फिफ्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल के साथ 5s 5p 5d 5f होता है, एंड सो ऑन। वंस यू हैव रिटन ऑल दीज, क्या करना है, सिंपल, जस्ट ड्रॉ अ लाइन कटिंग दीज ऑर्बिटल्स लाइक दिस, एक लाइन यू बनाओ, ठीक है। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल कट हो रहा है, 1s कट हो रहा है, तो 1s मस्ट बी एट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, देन ड्रॉ अनदर लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। अगर आप स्केल से पैरेलल ये लाइंस बनाओगे, 1s के बाद यू विल क्रॉस 2s, so it means after 1s you are crossing 2s, so 2s must be at the lower energy level, higher than 1s but lower than all, तो पहले 1s आ जाएगा फिर 2s आ जाएगा। Now draw another line parallel to this line, and if you draw this line, first you are cutting the 2p subshell, then you are crossing the 3s subshell, right? So first you will write 2p, then you will write 3s, ठीक है। सबसे पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, और फिर 3s आया। If you keep on drawing these parallel lines, then you will cut 3p and then 4s, तो इसके बाद आपका आ जाएगा
3p और उसके बाद आपका आ जाएगा 4s। 3d तो नहीं आया ना, देखो 3d तो अभी तक कट हुआ ही नहीं। अब इसके एक और पैरेलल लाइन बनाओ तो यू विल गेट 3d 4p एंड देन 5s। पहले कट होगा 3d तो यू विल राइट 3d, देन आफ्टर दैट 4p, then after that 5s. If you keep moving on and if you do another parallel line, you will get 4d. जब यारी लाइन बनाओगे तो पहले 4d कट हुआ, फिर 5p पे 6s, 4d 5p 6s। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे। अब आगे कंटिन्यू करना चाहो तो आगे you will have 4f 5d 6p and 7s। लेकिन हमें इतना आगे नहीं जाना, हमें ये ऑर्डर कहां तक याद रखना है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर अप टिल, वैसे तो 3d तक है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप 5s तक याद करोगे, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है, तो हम लोग याद करेंगे अप टिल 5s। अच्छा, क्या ये ऑबॉस रूल बना बना के हमें ये ऑर्डर निकालना होगा? नो, यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस ऑबॉस रूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर। अच्छा, अब ये ऑर्डर कोई अलग से बैठ के याद करने की जरूरत भी नहीं है बेटा। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे पूरे केमिस्ट्री के कोर्स में तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, अब ये ऑर्डर फौरन तो याद नहीं होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आफ्टर 3-4 मंथ्स आपके ये ऐसे फिंगर टिप्स पे होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक तो इतना फिंगर टिप पे होगा। बाकी इसके आगे का जो है वो मेरे कहने पे याद कर लो, 4p और 5s। और अगर भूल जाओ, इन केस अगर भूल जाओ तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉ दी ऑफ रूल एंड देन यू कैन फाइंड योर ओन ऑर्डर। सिंपल, बट इतना सिंपल भी नहीं है, इट विल टेक टाइम टू रिकॉल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो ये ऑर्डर है ऑफ द एनर्जी ऑर्बिटल्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये परेशान नहीं होना कि अब ये सारे एटम का अलग अलग होगा, नहीं, दिस इज सिमिलर फॉर ऑल द एटम्स। अब हम जरा आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो, ये जो ऑर्डर है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर है। इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? दिस इज इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। जैसे आपने ग्रेड 11 में पढ़ा था कि फर्स्ट शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली पहले आप फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखते हो, फिर सेकंड शेल में रखते हो, फिर थर्ड शेल में रखते हो। इसी तरह अब क्योंकि शेल्स के अंदर, प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के अंदर यू हैव सब शेल्स, so first you have to fill the subshell of every principal quantum shell। मतलब अब जब इलेक्ट्रॉन रखोगे तो पहले आप 1s में रखोगे, फिर 2s में रखोगे, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s। तो ये ऑर्डर आपको इसलिए दिया गया, राइट? अब एज पर दिस ऑर्डर हाउ वुड यू फिल द इलेक्ट्रॉन्स? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं वी हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सोडियम एटम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। How many electrons it has? It has total of 11 electrons, right? So you have to fill these 11 electron in this order that is given to you by Gauss rule। ये ऑर्डर क्या है? पहले 1s है, 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है बेटा? 1s s orbital can hold up to maximum of 2 electrons, so you can just add 2 electron in 1s। now the remaining electrons you need to fill in the other orbitals, so after 1s you will go to 2s। So s orbital can hold up to 2 electrons only, तो चाहे वो 1 का s हो, चाहे 2 का s हो, चाहे 3 का s हो, they can hold up to maximum of 2 electrons। तो 2s में भी we will have only 2 electrons। now after 2s you have 2p, 2p में भी p subshell can hold up to maximum of 6 electrons। तो इसमें आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? यू हैव टू ऐड 11 electrons, right, for sodium atom। Up till now you have assigned 2 electrons over here, 2 electrons over here, 6 electrons over here, तो total of 10 electrons तो आप अब तक डाल चुके हो। now you have to add one more electron, तो 2p की तो कैपेसिटी पूरी हो गई है, ठीक है। now you have to move to the third principal quantum shell which is 3s। अब 3s में a 3s subshell can hold up to maximum of 2 electrons। लेकिन क्या हमारे पास 2 बचे हैं? नहीं, हमारे पास कितने बचे हैं? 10 तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम 3s में 2 थोड़ी रखेंगे, हम 1 रखेंगे, है ये। नाउ यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस।
अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना from O level or grade 11, so this was 2,8,1. It means your first shell had 2 electrons, second shell had 8 electron, third shell had 1 electron. अभी भी तो ऐसा ही है. देखो फर्स्ट शेल जो है 1s, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल जो है इसके पास सिर्फ एक ही है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? 2 ही तो हैं. सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल इज मेड अप ऑफ 2s एंड 2p. ये 2s और 2p मिला के सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल बनना है ना, तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अभी भी 6 + 2 is 8. 8 ही है ना. थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल जो है हमारा, उसके पास सिर्फ s सब शेल है अभी और एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही है, बस पहले क्या था, हमने आपको कंबाइन करके बता दी थी सब शेल्स की. सब शेल्स अलग से नहीं दिखाए थे. अब एक प्रिंसिपल क्वांटम शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग करके देखा है, बस ये फर्क हुआ है. पहले हमने आपको कंबाइन करके दिया हुआ था, अब आपको सब शेल इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच सब शेल वो भी अब आपको दिखाना होगा. लेट्स मेक एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम. एटॉमिक नंबर 20. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने ग्रेड 11 में बनाई थी, डेट वाज 2,8,8,2. अब अगर आप कहते हो कि इसके थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में एज पर द न्यू रूल इट मस्ट हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, मतलब टोटल 18 आ सकते हैं, तो व्हाई वी आर नॉट मेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, कि मैं ये वाला जो फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया हूं, मैं इसमें ही रख के यहाँ पे 10 बना दूं? ये क्वेश्चन बनता है, जेन्युइन क्वेश्चन है. क्या ये वाकई में ऐसा होना चाहिए? हम क्या करते हैं, जो हमने ऑर्डर अभी अपना पढ़ा है, हमारा ऑर्डर क्या है? आवर ऑर्डर इज दिस. इसको अभी तो आप पता है क्या करोगे, इसको याद करने का तरीका क्या है? Your first homework in today's class would be the notebook you are writing your notes in. The use the header of all the pages जो आपके around 10 to 15. I would recommend कि जो first 20 pages है ना atomic structure में, तो वो जो header होता है आपका, उस पे ये order लिख दो, क्योंकि ये आपको बार बार यूज करना है. आप बार बार पीछे पलट के नहीं देखोगे पेज, ये आपके पास ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए और ऐसे याद हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ अभी. अब नाउ यू हैव टू ऐड टोटल ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन. तो कैल्शियम के लिए 20 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड करोगे? देखो भाई, वी हैव 1s कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 2 डाल दिए. 1s के बाद 2s आएगा. 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते ना, लेकिन टोटल तो मुझे 20 इलेक्ट्रॉन्स डालने, तो फिर मैं 2p पे जाऊंगा. 2p कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. 20 तो अभी भी नहीं हुए, 10 हुए. Then I will start filling 3s. 3s s subshell can hold up to maximum of 2 electrons. तो अब कितने हो गए? 12 हो गए. 20 तो अभी भी नहीं हुए. Then I will start filling into 3p. 3p can hold up to maximum of 6 electrons. 20 तो अभी भी नहीं हुए. 3p के बाद we have 4s. अभी कितने हो गए देखो? 2 + 2 + 6 + 2 + 6, 10, 12. 12 + 6 is 18. So how many more electrons do we need to add? Total 20 करना है ना, तो 4s में we will add 2 more electrons. अब जरा ध्यान से सुनना. इसके फर्स्ट शेल में, the first shell has how many electrons? 1s and s के पास 2 electron. Second shell is due to 2s and 2p, right? This 2s and 2p has total of how many electrons? 8 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन s में, 6p में, टोटल 8 हो गए. 3s subshell, if you see 3s subshell, it has 3s and 3p. तो 3s और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 is 8 इलेक्ट्रॉन. अब 18, 10 तो नहीं आ रहे ना इसमें. उसके बाद 4 आ गया. 3s और 3p. 3d तो बाद में फिल होगा ना 4s के. अगर मुझे 3d को फिल करना पड़ता तो वो तो बाद में आता है ना. तो 3s और 3p में मिला के तो सिर्फ 8 ही आए. 3d में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, 0 है. ठीक है, टोटल 18 आ सकते हैं थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में. 2 electrons in s subshell, 6 electron in p subshell and 10 electrons in d subshell. Total it can hold up to 18 electrons. But here 3d is filled after 4s. But as you have reached a 4s orbital, you have added total of 20 electrons. There are no more electrons left.
राइट? सो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ओ लेवल में या ग्रेड 11 में बनाया था वो सही बनाया। 4 में 2 ही आ रहा है, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल में, तो वो हमने गलत तो नहीं बनाया था, बस हमने सब शेल्स नहीं दिखाए। तो अभी भी यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्रिंसिपल क्वांटम शेल में फर्स्ट में 2 ही आएंगे, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और लास्ट में 2 कैल्शियम के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर इनको सब शेल्स में डिवाइड करोगे तो यही था। अच्छा, बैक इन ग्रेड 11 वी यूज्ड टू से वी आर जस्ट सपोज्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। और उसका रीजन यही था कि फर्स्ट 20 तक ये रूल पूरा का पूरा ऐसे ही रहता है, इसलिए हमने उससे आगे आपको बनवाई नहीं थी। याद आया? ठीक है भाई, क्लियर है, समझ आएगी बात यहां तक? हाउ अबाउट लेट्स मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम? इट इज 56। बनाओगे? ऑर्डर आपके पास गिवन है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p and 6s। 2, 2, 6, 2, 10, 2, 10 कितने हो गए यहाँ? बहुत आगे तक चली जाएगी, आई कैन अंडरस्टैंड। छोटा करेंगे, 6, 2, 10, 6, 2। देखो हो गए 56। काउंट करो जिसकी मैथ्स अच्छी है। 2 + 2 + 6 10, 12, 22, 24, 34। 34 + 6 is 40, 42, 52। 52 + 6 is 52 + 6, ये तो ज्यादा आ रहा है। इसको बस काउंट कर लो, 2 + 2 + 6 + 2 + 10 + 6 + 2 + 10 + 6 + 2। 3p में मैं कहीं ने 10 लिख दिए, अच्छा जब ये गड़बड़ आ रही है, 3p में 6 है, सॉरी। कितना बन रहा है टोटल ये? इट शुड बी 56। ओके, आई थिंक कुछ ज्यादा ऊपर का हो गया। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इसकी बनाते हैं। ऑर्डर क्या है हमारे पास? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, उसके बाद 5s, 4d एंड सो ऑन। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। We have to add up of total of 17 electrons. 1s में we have 2 electrons, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6। कितने हो गए टोटल? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10, 11, 12, 12 + 4 is 20। इट मीन्स हमने ज्यादा डाल दिए तो 3p हम थोड़े से कम कर देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। वी हैव टू ऐड अप ऑफ 5 मोर इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 3p 5 तक बस फिल होगा, उसके आगे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। इसी तरह लेट्स से अगर मेरे पास कोई एटम है रुबीडियम। रुबीडियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 37। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग ऑर्डर शुड बी, फिलिंग ऑर्डर तो सबके लिए यही है ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, देन 4s, 4s, देन 4s के बाद we have 3d, then 4p,
then we have 5s, then 4d, then we have 5p and 6s. कहां तक फिलिंग करनी होगी इसकी? 2 2 6 2 6 10 2 10 6 1. ठीक है, यहां तक फिलिंग करोगे 37 हो जाएंगे. अब देखो बेटा, मेरी मैथ्स तो, माय मैथ्स इज अ डिजास्टर. दोस हु हैव नोन मी ऑलरेडी, दे नो वेरी वेल कि मेरी मैथमेटिक्स तो इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग दैट आई जस्ट कैन काउंट दीज बाय एडिंग. ठीक है, मैं इस तरह से तो ऐड कर नहीं रहा हूं. मैं कुछ और कर, मेरे पास एक ट्रिक है, मुझे पता है कि मुझे कहां तक फिलिंग पे रुकना है. ठीक है, ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी, लेकिन आज की क्लास में नहीं होंगी. आज की क्लास में आपका एक होमवर्क बन रहा है. वो होमवर्क आपका क्या बन रहा है? यू हैव टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of all the elements up till नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं, बल्कि काम मैं पूरे प्रोडक्ट टेबल की देना नहीं चाह रहा. ठीक है, चलो इस तरह से कर लेते हैं कि योर होमवर्क इज मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1. बल्कि इस तरह से कर लेते हैं ना, मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 1 till 36, मतलब हाइड्रोजन टू क्रिप्टॉन, इनकी बना. 4s is before 3d. Yes, the filling order of 4s is before 3d. 4s fill पहले होगा 3d से. फिल होने के बाद वो कहां जाएगा, दैट समथिंग एल्स, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दैट 4s हैज टू फिल फर्स्ट देन 3d. 3d मैंने दो बार लिख दिया. कहां पे दो बार लिख दिया? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s. 3d मैंने दो बार लिख दिया, सॉरी, दिस इज नॉट 3d. TP के बाद we have 4s, then we have 3d, then we have 4p, then we have 5s, then we have 4d, then we have 5p, then we have 6s. For rubidium, it should be like this. ठीक है, रुबिडियम की यहाँ पे एंड हो जाएगी, तो हम बाकी जो है वो हम हटा देते हैं यहाँ से. ठीक है भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? इट्स नॉट दैट इजी. यू विल टेक टाइम, टेक योर टाइम. जस्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम 1 till 36. इसमें फिर मैं कुछ चेंजेस करवाऊंगा. अभी तो बहुत सारी बातें बतानी है. अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमने एक ही रूल पढ़ा है, ऑफ रूल. ठीक है, वी हैव 3 more रूल्स जो हमें पढ़ने हैं. और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या क्या उसमें एक्सेप्शंस होती हैं, कि क्या क्या चीजें डिफरेंट होंगी, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बट अभी इतनी प्रैक्टिस तो करो, अभी तो चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता लेके आप लोगों को. ठीक है भाई, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जा सकते हैं आप लोग. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. कोई क्वेश्चन नहीं?